Hello students, myself Rakesh Misra. Today we are going to discuss about the explanation of floral parts. In previous video lecture, you have seen the diagrammatic representation of the complete flower. So let back in online class and see whatever the different parts of flower. Explanation of flower and its parts. You mean to say explanation of floral parts. Listen, कल मैंने बताया था सबको the broader part is known as stigma and this is known as style and the swollen part is known as ovary which is located on the thalamus. This is the position that is known as the thalamus. Listen, this is the part of female reproductive system and this one is the anther and there is the sepal and petal. So let I label the different parts. Pedicel, calyx, that is the sepal, and this is the petal, this is the filament, this is the anther and filament collectively called as stamen. This one is the stigma, this is the style, and this whole swollen part is known as the ovary. Listen, so one by one you have to explain whatever the different parts of the flower. Point 1, there was a pedicel and explanation of pedicel was over. The main attachment of flower to the main plant is known as the pedicel. Second one is the sepal. There is no need of broad explanation about the sepal. The green parts of flower that are the basal parts at the region of thalamus is the sepal. It is green to perform photosynthesis. The third one is petal. Petal actually this is responsible to attract the insect. This is the colorful parts of plant. This is colorful part. It may be green, it may be yellow, it may be red, it may be white, it may be orange, it may be pink, it may be blue. So depending upon the flower, the petal colors are differently in different flowers. So some flowers are blue in color like Aparajita, the petals will be the blue. Some flowers are red in color like rose, so the petal will be the rose. Some flowers are white in color like water lily, then there will be the white. Some flowers are pink in color like lotus, then the petals will be pink. अब बोलो भाई क्या पूछ रही है? चलो नेक्स्ट आते हैं पेटल. Sepal is green in color. Sepal is green in color and it performs the photosynthesis. Now back to important part. Anther and filament. This collectively form the male reproductive system or stamen, that is also known as androecium. Androecium, that is also known as androecium. Male reproductive system is stamen or androecium. So what actually form inside the androecium? This is the anther. If you make the TS of anther, you will find the hole inside the anther. अगर टीएस काटोगे इस तरह से तुमको क्या मिलेगा? अंदर होल मिलेंगे. ये उसके फिलामेंट वाला पोर्शन है. ठीक है. What actually found inside the hole? This is actually the pollen grain. This is actually the
pollen grain, and this consists the male gamete. It consists the male gamete, so it is haploid. It is haploid in nature. As like sperm is male gamete that are found in the very special organ known as the testis, similarly pollen grain consists male gametes that are found inside the chamber of anther. This is the chamber of anther. This is the anther, and this is the chamber of anther. Chamber of anther, that is known as pollen sac. This is known as pollen sac. तो आपकी कॉपी में जो एक्सप्लेनेशन होगा इसका स्टेमन का, वो डिटेल आप लोग कैसे लिखेंगे ध्यान से सुने. ईच एंथर हैज अ pollen sac in which the pollen grains are formed. Each pollen grain consists the male gamete. इतने खाली लिखना है. क्लियर है ना? चलो अब इसको नोट कर लो, फिर आगे आते हैं. अगला हाँ क्या पूछ रहे? बोलो भाई. ऑडियो नहीं आ रहा तुम्हारा. कहाँ? किसके अंदर? हाँ इसके अंदर पॉलन ग्रेन होगा. ये चैम्बर जब काटोगे इसको, जब एक बार इसको टीएस काटोगे तो ये बड़े बड़े 4 चैम्बर दिखेंगे. ठीक है, इसको कहते हैं पॉलन सैक. उसी पॉलन सैक में ये छोटे छोटे क्या बनेंगे? ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन होते हैं. जब ये ब्रस्ट होता है ना, ये ब्रस्ट हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन इससे निकल जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे. यहाँ से निकल जाएंगे पॉलन ग्रेन. दिस इज द पॉलन ग्रेन. ये हवा में निकल जाएंगे. बातें समझ में आ रहा है ना? फ्लावर को जब टच करोगे तो हाथ पे पीला पीला कुछ लगा सा मिलेगा, पाउडर. दैट इज द पॉलन ग्रेन. क्लियर है? हाँ, पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट. गैमीट का मतलब क्या होता है? हैप्लॉयड न्यूक्लियस. हैप्लॉयड न्यूक्लियस. ठीक है, वही गैमीट है. अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं. अब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहा है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगला है. ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था. नेक्स्ट इज पिस्टिल और कार्पेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब पिस्टिल कार्पेल की बात कर रहे हैं. ये जो दिख रहा है ओवरी, ये ओवरी का जब हम टीएस या एलएस काटेंगे, इसको खोलेंगे. सपोज इसको मैं खोल रहा हूं, तो अब इसके अंदर क्या है उसको भी देख लेते हैं हम लोग. देखो, इसके अंदर एक सैक है, चैम्बर है. जैसे पॉलन एंथर के अंदर चैम्बर था, उसके अंदर भी चैम्बर होगा. दिस चैम्बर इज नोन एज द लॉक्यूल. इसके अंदर जो चैम्बर होगा उसको क्या बोलेंगे? लॉक्यूल. और इसके अंदर क्या होगा? ओव्यूल. इसके अंदर क्या होगा? ओव्यूल. ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या होगा? एग सेल. ये क्या है? एग सेल. और ये एग सेल बेसिकली क्या होगा? ये एग सेल, इसमें फीमेल गैमीट होगा. इट मीन्स दिस कंसिस्ट फीमेल गैमीट and this actually haploid in nature. जो मेल गैमीट उसमें था पॉलन ग्रेन में, न्यूक्लियस को ही गैमीट बोलते हैं. तो वो गैमीट यानी पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड है और ये एग सेल हैप्लॉयड है. ये दोनों आपस में न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बन जाएगा. ठीक है, अब कैसे होगा मैं आगे की कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सब लोग सुनेंगे. इसके बाद यहाँ पे होगा सिनर्जीड. छोटे छोटे 2 एपरेटस होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जीड. ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको सिनर्जिस्ट बोलते हैं.
ये पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा, इसका फंक्शन मैं बाद में बता दूंगा। ये पॉलन ट्यूब को गाइड करना है कि यहाँ पे डायरेक्शन इसका एग सेल के साइड में कर देगा पॉलन ट्यूब को, ठीक है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ इस वाले पार्ट में। ये हॉलो स्ट्रक्चर है, मतलब इस पे ऐसा नहीं है कि ये भरा हुआ है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द hollow structure that is called as style, and this allow to movement of pollen tube। pollen tube जब इसमें जर्मिनेट करेगा तो pollen tube इसी के रास्ते मूव करके आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये hollow structure है, that is known as style, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट ये दिख रहा है स्टिकी, that is known as stigma। और स्टिग्मा कैसा होगा? स्टिकी, ये होगा स्टिकी नेचर का, मतलब चिपचिपा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में एक एक करके सारी चीजें मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पिस्टिल, कार्पल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट, उसमें क्या लिखेंगे? ओवरी, ओवरी हो गया, कंसिस्ट ओवरी। पांचवें पॉइंट में लिखेंगे पिस्टिल और कार्पेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ओवरी, हो गया। अब लिखो इनसाइड ईच ओवरी देयर इज अ कैविटी कॉल्ड लॉक्यूल, देयर इज अ कैविटी कॉल्ड लॉक्यूल। अब उसमें भी लिखना है इनसाइड ओवेरियन लॉक्यूल देयर इज, इनसाइड ओवेरियन लॉक्यूल देयर इज ओव्यूल, देयर इज ओव्यूल, हो गया। अब लिखो इनसाइड ओव्यूल द फीमेल गैमीट फाउंड कॉल्ड एग सेल, इनसाइड ओव्यूल द फीमेल गैमीट फाउंड कॉल्ड एग सेल, फीमेल गैमीट फाउंड कॉल्ड एग सेल, हो गया। चलो, एग सेल आर हैप्लॉयड, लिखो आगे एग सेल आर हैप्लॉयड, फुल स्टॉप। अब आगे लिखना है स्टाइल। ये अगला हेडिंग क्या रहेगा 6 नंबर पे? स्टाइल। स्टाइल में क्या लिखेंगे? इट इज हॉलो ट्यूबुलर पार्ट, स्टाइल में लिखो इट इज हॉलो ट्यूबुलर पार्ट कनेक्टेड बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, कनेक्टेड बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं स्टिग्मा। क्या लिखना है? दिस अलाउ टू स्टिक द पॉलन ग्रेन एंड प्रोवाइड साइट ऑफ लैंडिंग, दिस स्टिग्मा अलाउ टू स्टिक द पॉलन ग्रेन एंड प्रोवाइड साइट ऑफ लैंडिंग। यानी अगर क्वेश्चन पूछ दे वेयर इज पॉलन ग्रेन लैंड, तो लिखेंगे पॉलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा, हो गया। साइट ऑफ लैंडिंग, LANDING, लैंडिंग मतलब उतरना होता है, हो गया। चलो, तो ये हमारा डिफरेंट पार्ट्स का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अगला हेडिंग है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्रोसेस ऑफ
रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब स्टेप वाइज प्रोसेस अगर अगर एग्जाम में आ गया तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसमें स्टेप वन में क्या लिखेंगे, मैच्यूरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। पहले स्टेज में क्या होगा, फ्लावर के अंदर जो मेल गैमीट स्टेमन है, स्टेमन के अंदर पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा, और फ्लावर के अंदर जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो एग है वो मैच्योर होगा। जब दोनों मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एंथर, ओवरी के अंदर जो एग है वो वही रहेगा। देखो ये जो पार्ट है मैं बना दे रहा हूं, ध्यान से देखो, इधर थोड़ा मैं बड़ा बनाया हूं। इसके अंदर ओवरी के अंदर जो एग है, ठीक है, ये ओवरी के अंदर जो एग है ये जहां है वहीं रहेगा एग, और ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन ये यहां से लैंड होकर के किस पे जाएंगे, स्टिग्मा पे। ये क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। तो पहले तो मैच्योर पॉलन ग्रेन एंथर में मैच्योर होगा, और एग कहां मैच्योर होगा, ओवरी के अंदर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। यू नीड टू एक्सप्लेन दिस टर्म इन योर ओन लैंग्वेज। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज योर होमवर्क टू एक्सप्लेन द पॉइंट फर्स्ट। मेल गैमीट्स आर इन फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन that mature inside the anther. Female gametes are in form of egg cell that mature inside the ovary. ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप अपने वे में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है ना सबको? अब मैच्योरिटी में क्या होता है, मैच्योरिटी में सेकेंड पॉलिनेशन। सेकेंड स्टेज क्या है, पॉलिनेशन में क्या होगा, when pollen grain mature, listen my voice, listen me carefully, when pollen grain mature inside the anther, then wall of anther get burst. This process is known as anther dehiscence. This process is known as anther dehiscence. So at the time of wall bursting of anther, all pollen grains immediately released out from anther and flow in the air. Listen carefully. That is need to land on stigma. Without landing of pollen grain on stigma, it is not possible to complete the life of a flowering plant. So there is a need of landing of this pollen grain to the stigma. This process is known as pollination. So simple meaning of pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma. Transfer of pollen grain from anther to stigma called pollination. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता रहता है। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, this is called pollination. Is it clear to everyone?